Now, covalent compound, okay, means the compound containing covalent bond are known as covalent compounds. Okay, so first classification of covalent bond or covalent compound on the basis of sharing of electron. Okay, now the second classification on the basis of polarity. Okay, on the basis of polarity. Okay, now look here, covalent compounds are two types on the basis of polarity. Okay, covalent compounds are two types. Okay, first one is non-polar covalent compound. Covalent compound. And second one is the polar covalent compound. Okay, so covalent compound on the basis of polarity, two types, non-polar covalent compound and the polar covalent compound. Okay, now example. Now in your examination, question asked, that is, write the two example of polar covalent compound or non-polar covalent compound. Okay, so example of non-polar covalent compound: hydrogen molecule, oxygen molecule, chlorine molecule. Okay, CCl4. Okay, the name of this compound is carbon. How many chlorine atom? 4. For 4 we use tetra. Okay, so carbon tetrachloride. Okay, carbon tetrachloride. Okay, this one is the methane. Okay, carbon tetrachloride and methane. These are the example of non-polar covalent compound. Okay, now example of polar covalent compound. Okay, example of polar covalent compound: HCl, that is HCl. It is an example of what? Polar covalent compound. Okay, now next example, water. Okay, water is another example, and ammonia, NH3, and so on. Okay, so these are the example of non-polar covalent compound, and this is the example of polar covalent compound. Okay, look here, note down the name of this compound. This one is the carbon tetrachloride. Okay, and this one is the methane. Okay, this one is the ammonia. Water, hydrochloric acid, yeah, hydrogen chloride. Okay, so these are the example of non-polar covalent compound, and these are the example of polar covalent compound. Okay, अब आप ये सोच रहे होगे कि डिफिनीशन तो मैंने बताया ही नहीं, मैंने क्यों डायरेक्ट एग्जाम्पल बताया? ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. ओके, पोलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर? पोलर मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज. All of you know very well that what is the charge. Charge are two types, positive and negative. Okay, so look here, polar means simply formation of charge, and where formation of charge takes place, where
डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, ठीक है, चार्ज का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर, और उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, या उसी को हम लोग पोलैरिटी भी बोलते हैं। ओके, तो पोलर का सबसे सिंपल सा मतलब पोलर का जो होता है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। ठीक, क्या होता है पोलर का मतलब फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। और क्यों फॉर्मेशन ऑफ चार्ज होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, तो पोलर का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। और क्यों फॉर्मेशन ऑफ चार्ज होगा? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, चलो अब देखो, जब दिमाग में ये बात आ गया पोलर, और पोलर कब होगा? ड्यू टू डिफरेंस इन व्हाट? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम जनरली कैपिटल EN से रिप्रेजेंट करते हैं, बट आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, तो पोलैरिटी कब होगी? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, नाउ देखो, एक कोवैलेंट कंपाउंड्स के टाइप्स हैं। इट मीन्स कि इसमें भी शेयरिंग हो रहा होगा और इसमें भी शेयरिंग हो रहा होगा, तो फिर दोनों में डिफरेंस कहां से आए? चलो एग्जांपल से समझते हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले नॉन पोलर समझते हैं, ठीक है, क्लोरीन का। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन, Cl2। इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ क्लोरीन एटम, 2 एटम ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, 2 क्लोरीन एटम से किसका फॉर्मेशन हुआ होगा? Cl2 मॉलिक्यूल का। ओके, तो लुक हियर, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लुक हियर, फर्स्ट क्लोरीन एटम एंड सेकेंड क्लोरीन एटम। हम क्या करते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसको कर दिए। इसको हम 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर देखो क्या होगा? शेयरिंग होगा। इस तरीके से क्या हो गया? शेयरिंग हो गया एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब देखो शेयरिंग के बाद क्या होता है? यहाँ पे शेयरिंग के बाद क्या होता है? ठीक है, ये देखो, यहाँ पे एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन। ठीक है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0 है, सेम एटम है, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करने का, लेकिन जब सेम एटम है क्लोरीन के, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्रिएट नहीं होगा। किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कोई भी क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखो, ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। ठीक है, एज सच इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, एज सच इस तरीके से रहते हैं। अच्छा, देखने से देखो लग रहा है बाकी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको देखने से देखो क्या लग रहा है कि ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है एकदम इन बिटवीन है। क्या है? इन बिटवीन, मतलब एकदम बीच में है। ठीक है, लग रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये भी कह सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो शेयरिंग हो रही है उसका डिस्टेंस या वो क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। तो एक क्लोरीन, और फिर इसी से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एक क्लोरीन बॉन्ड का, और इसको हम लिखते हैं Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना, इक्वल शेयरिंग। यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0। ये भी याद रखना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक यहाँ पर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड का।
एक एग्जांपल लेते हैं HCl, ठीक है, किसका एग्जांपल लेते हैं, HCl। HCl का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हमने बना दिया। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन आ गया, इसमें 7 होता है तो हमने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, सिंपल सी बात है, शेयरिंग होगी। क्यों? क्योंकि यदि एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका क्या है, इनकम्प्लीट हो जाएगा। और शेयरिंग हो जाएगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पर भी शेयरिंग हुआ, किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये देखो यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, यहाँ देखो ये है। अब क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट, सो लुक हियर, हमने एग्जांपल लिया HCl का, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सिंपली हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पर एक क्लोरीन है, ठीक है, और क्लोरीन किस ग्रुप का होता है, 17 ग्रुप का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को शो करेंगे। मीन्स व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कंबाइंड स्टेट। ओके, तो यहां पर देखो क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, ठीक है। तो ये करेगा क्या, ठीक है, देखो क्या करेगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा कि ये देखो क्लोरीन की टेंडेंसी होती है, ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो हम बना रहे हैं तो ध्यान से देखना, सो लुक हियर, देखो ए क्या है हमारा, शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो ऐसा लग रहा है जैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल शेयरिंग हो रही है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, देखने से लग रहा होगा कि क्लोरीन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज होती है क्लोरीन एटम की कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लग रहा है इक्वल, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, अनइक्वल शेयरिंग, ठीक है, क्या लग रहा है, अनइक्वल शेयरिंग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है, यहाँ पे जो शेयरिंग हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो क्या है, अनइक्वल है। अब देखो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है, दिखाई दे रहा। अब देखो यहीं पे कंपेयर करो, यहाँ पर देखो क्लोरीन क्लोरीन है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यहाँ पर देखो दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक पास है, इक्वल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो अनइक्वल, अनइक्वल या सिंपली कह सकते हो कि इधर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखो इसको हम लोग बॉन्ड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो हम बना रहे हैं फिर से, ये देखो बॉन्ड, ए बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग जब अट्रैक्ट करता है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
मतलब ये शो करता है कि क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसने क्या किया, अट्रैक्ट किया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया, और जहां से जा रहा है वहां पर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, चार्ज का फॉर्मेशन हो गया, और जब चार्ज का फॉर्मेशन हो गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, तो दीज आर अबाउट द पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। सो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड एंड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। देखो यहीं से डिफिनेशन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है वो क्या हो रही है, इक्वल शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल शेयरिंग। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफिनेशन, the definition of non-polar covalent compound is that the bond formed by the sharing of equal non-polar covalent bond formed by the equal sharing of electron, whereas polar covalent bond या polar covalent compound are formed by the unequal sharing of electrons. Okay, and what is the meaning of polarity? Polarity means formation of charge due to difference in electronegativity. Okay, so these are about the covalent compounds, non-polar covalent compound and polar covalent compounds. Okay, next वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके।